हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टो बाजार। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल एनालिसिस लेकर के आए हैं, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बाटा इंडिया लिमिटेड की। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो बाटा इंडिया इज प्राइमरली engaged in the business of manufacturing and trading of footwear and accessories through its retail and wholesale network. Then Bata Corporation was first founded in the year 1894 in Czech Republic. They are having their production facilities at Batanagar in West Bengal, Patna, and Hathidaha in Bihar, Faridabad in Haryana, Bangalore in Karnataka, and Hosur in Tamil Nadu. So Bata is completely a wholly owned subsidiary, and it includes Bata Properties Limited, Coastal Commercial and Exim Limited, and Wayfinders Brands Limited. Bata India was first incorporated in the year 1931 as Bata Shoe Company Private Limited in Kongar, West Bengal, which was then shifted to Bata Nagar and went public in the year 1973. Bata Corporation at present owns 53% stake in the company, and then the name changed to Bata India Limited. फ्रेंड्स, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि कंपनी में क्या ग्रोथ होने वाली है या कंपनी कितना जो है वो मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो इनके विद 1,526 stores across cities हैं and including franchisee stores, and has a 2.98 million square feet of retail space across India. Company also sold 31.97 million footwears in financial year 21, and company sold more than 2.4 million pairs of footwear through online channels and achieved a turnover of rupees 1522 million. Bata sells footwear under several leading brands in India, catering to the lower and upper segments of the demand pyramid. In financial year 21, the company spent 57.55 million on its research and development. They have also successfully launched new products with antimicrobial properties and Ortholite for our Power Shoes brand to increase comfort and fitting experience. Company retail business contributed 88% of the revenue, and from non-retail business company owns 12% of revenue. Then Bata India now ships more than 96% of orders received from Bata in through its stores. Sales through digitally enabled platforms such as the Bata website and other online marketplaces contributed over 15% of total revenue. Any customer who purchases a product from Bata can also become a member under Bata's flagship loyalty program, Bata Club, and now it is currently has over 13 million active members. Friends, Bata's non-retail business division comprises urban wholesale, industrial and institutional business divisions and exports. Bata also won several institutional and distribution businesses orders to supply safety and industrial shoes to companies in the cement, steel, and railways sectors. In December 21 quarter, company has 15 to 20 stores, and coming to the last March quarter 22, it expanded to 107 stores. It has a retail presence of over 5,300 shops in more than 70 countries and production facilities in 18 countries. So Bata is having so many franchisees in cities in other franchisee. अगर हम बाटा प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स की बात करते हैं तो बाटा में इनका 3D एंड हुश पपीज जो ब्रांड है वो एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। एंड देन इनके कुछ ब्रांड्स और भी हैं जिसमें नेचुरलाइजर, मारी क्लेयर, पावर, और अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इनके ब्रांड्स की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, जिसमें जो है इनका कैट, डिज्नी, नॉर्थ स्टार, पावर, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। स्कॉल जो है एक इनका ब्रांड है,
पावर ब्रांड है। तो बाटा बेसिकली हर जो एक एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अगर हम बाटा के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मिस्टर अश्विनी विंडलास इसके चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। देन मिस्टर राजीव गोपाल कृष्णन मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड इनकी एक बहुत ही अच्छी जो टीम है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की है। तो अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात अगर हम करते हैं तो कंपनी जो है वो एक मिड कैप कंपनी है अराउंड ₹22,141 करोड़ की, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पीई कंपनी का 215 है और कंपनी का सेक्टर पीई जो है वो 56.4 कंपनी है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक बहुत कॉस्टली कंपनी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का आरओसीई और आरओई थोड़ा-सा कम है यहाँ पर। 8.16% इसका आरओसीई है एंड आरओई इसका 5.77% है। डेट टू इक्विटी 0.60 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.2% है। प्रॉफिट में ये थोड़ा-सा डाउन चले गए हैं, 32.2% का है। एंड देन सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 3 इयर्स की वो भी डाउन पर है 6.61%। प्रमोटर होल्डिंग 53% की है। प्लेज्ड परसेंटेज इनका कुछ भी नहीं। अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग 53.0% की है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है तो वो 2.51 है। कैश इक्विवेलेंट्स रुपीज 969 करोड़ है। प्राइस टू सेल्स इनका 9.27 है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो मार्च 18 से 20 तक तो इसने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, बट मार्च 21 में ए ये काफ़ी डाउन चला गया है। मे बी इसका रीज़न एक पैंडेमिक भी हो सकता है, क्योंकि अ, सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन या प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह का बंद होना भी एक रीज़न हो सकता है। देन मार्च 22 में इसने अपने आप को कवर किया है, जो कि 2443.62 करोड़ पर पहुँच गया है। देन इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में 21 में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट मार्च 22 में ये डाउन होकर के 683.97 करोड़ पर रह गई है। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बढ़ा है। हम चार्ट में देख सकते हैं कि मार्च 21 में ये माइनस में चला गया था, अभी जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर गया है। अब क्वार्टर की बात करते हैं तो क्वार्टर में भी दिसंबर 21 के क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन है, बट यस एक प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, तो ये अपने आप को कहीं न कहीं रिकवर कर लेती है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इसका प्रीवियस कुछ सालों में बढ़ा था, बट लास्ट ईयर जो है वो फिर से कम होकर के अभी 7.85 पर है। बुक वैल्यू ग्राफ की बात करते हैं तो इसकी बुक वैल्यू जो दे रखी है वो 141.515 की है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा इंक्रीज की है। अगर हम आरओई की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट इसका काफी कम है, ये स्लाइटली डाउन जाता है। देन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा बढ़ गया है जो कि 2.86 हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम ही है, इसका 5.56 का ग्राफ शो कर रहा है। अगर हम आरओसीई की बात करते हैं तो आरओसीई 8.48 है। एज पर बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है इसका। अब हम कंपनी के अदर वैल्यूएशंस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब अगर हम इसके सेल्स एंड मार्जिन्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स ग्राफ है वो भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी डाउन गया है। लेकिन यस अपने आप को कंपनी कंसोलिडेट करके फिर से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन पर पहुंच ही जाती है। तो कंपनी की अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो अपने क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। और कंपनी एक जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर कंपनी की नेगेटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.20 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, and company has delivered a poor sales growth and
profit growth also over the past 5 years, and company has a slow return on equity of 6.47% फॉर द लास्ट 3 years। तो हम अगर बात करते हैं कि इसका एक अपने कॉम्पिटिटर्स से क्या पोजीशन है, तो बाटा की अभी भी फिलहाल सेकंड पोजीशन ये होल्ड किए हुए है। तो अब हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो कंपनी के एक्सपेंसेस स्लाइटली कम हो गए हैं और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो अभी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि कम ही है, 63 करोड़ अराउंड है। देन अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये 3056 देन 178। अभी यहाँ मार्च 22 के क्वार्टर में ये फिर से कम हो गई है थोड़ी सी। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो कंपनी काफ़ी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी के अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं, तो रिजर्व्स में इंक्रीमेंट काफ़ी हद तक हुआ है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं 1694 से 1750 तक हो गई है। एंड देन यहाँ पर इनकी फिक्स असेट्स भी बढ़ी हुई है। तो कंपनी की फिक्स असेट्स के साथ-साथ इनके बोरोइंग्स भी बढ़े हुए हैं। दैट मीन्स कि हम ये एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कंपनी ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ही किए हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसमें प्रमोटर्स के पास 52.96 तक की प्रमोटर होल्डिंग है। एंड देन एफआईआईज की बात करते हैं, और एफआईआईज का 6.66 का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जो कि हाल फिलहाल ईयर्स में इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। डीआईआईज का 27.41% का, एंड पब्लिक इसमें 12.97% की है। तो फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो प्रीवियस अगर हम 2 सालों का कंपैरिजन करते हैं, तो का थोड़ा डाउनफॉल पर है, बट यस, पिछले कुछ सालों में भी ऐसा हुआ, बट कंपनी ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है। तो कंपनी एक अपने आप को रिकवर कंपनी में चलते रहते हैं, और कंपनी पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट देने वाली कंपनी रही है। बट यस, लास्ट 2 ईयर से इसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं काफ़ी नेगेटिव में चले गए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है इस कंपनी को कि नहीं, ये सलाह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक